Barakatuh. This is Muhammad Abdullah, a fourth year medical student from Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical and Dental College, Lahore. This is the keynote presentation on study techniques. Most of this data in this keynote presentation is evidence based. So, firstly, we'll talk about how did we learn our study techniques. Were they taught to us in school? Like we were taught how to add, how to subtract, how to divide, what is the Pythagoras theorem, and different stuff? The answer to this is no. This wasn't taught to us in school. So how did we learn them? We learned them through intuition. What is intuition? Intuition is doing whatever feels right. कोई भी चीज़ आप करते हैं आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ. कोई बंदा अगर हाईलाइट कर रहा है और उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या हाईलाइट करना चाहिए, उसकी जैसे हाईलाइट करने की वजह से उसके एग्ज़ाम और टेस्ट पास हो रहे हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो ये फिर ये समझता है कि हाईलाइटिंग ही बेस्ट स्टडी टेक्निक है, तो वो उसी को अपना लेता है और वो ही यूजेस दैट हिज होल लाइफ. सो दैट इज़ इंट्यूशन. Due to learning our study techniques due to intuition, a lot of our time is lost, and this is not effective at all. So we go to the next slide. So how do we evaluate if our study strategy is effective? I talked about it in the last slide as well. Like, do we go for personal experience? कि अगर आप highlight कर रहे हैं, रीरीड कर रहे हैं, उसके बाद या कोई भी इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी टेक्निक को किस तरह जज करेंगे? कि आप देखेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एक स्टडी टेक्निक यूज़ करने के बाद, तो क्या इज़ दिस गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन? नहीं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपके लिए शायद काम करता हो मगर बाकी के लिए शायद ना करे. तो इसका क्या हमारे पास सोल्यूशन है? हम इसको किस तरह हल कर सकते हैं? उसके लिए हम एविडेंस बेस्ड जो है ना स्टडी टेक्निक्स देखेंगे जो रिसर्च बेस्ड हैं. रिसर्च में रिसर्चर्स research in a large group of people and then take out results from that research and then tell us what is effective and what is not. और जो research से जो data आएगा वो जो है ना most of the population के लिए effective होगा as compared to personal experience जो सिर्फ एक बंदे के लिए effective है. तो मोस्ट कॉमनली यूज स्टडी टेक्निक्स ही हमने एक सर्वे किया हमारे अपने कॉलेज के अंदर. तो इसमें मोस्ट कॉमन जो था हाईलाइटिंग था. 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हाईलाइट. दिस इज़ द सर्वे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज. और फिर रीडिंग 53%. ये ओवरलैप इन परसेंटेजेस इज़ बिकॉज one student was allowed to choose more than one option, so there's an overlap in percentages. So rereading और highlighting ये हम देख रहे हैं one of the most commonly used study techniques हैं. मगर फिर हम अभी देख रहे हैं जो ये ineffective study techniques, these are evidence based ineffective study techniques. हमें रिसर्च बताती है कि study techniques effective नहीं है. उनके अंदर ही पहला रीरीडिंग आ जाता है, दूसरे नंबर पे हाईलाइटिंग आ जाता है, फिर स्टडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम है, फिर इसके बाद मैथ्स प्रैक्टिस है. मैथ्स प्रैक्टिस का मतलब है कि एक ही सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ रहे हैं और जिससे रट्टा लगाना इसको कहेंगे. फिर इसके बाद ब्लॉक्ड प्रैक्टिस है. ब्लॉक्ड प्रैक्टिस है कि एक ही टॉपिक को आप बार बार पढ़ रहे हैं दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले. इसके बाद नोट्स को भी रिव्यू करना एक इनफेक्टिव स्टडी टेक्निक है. अच्छा, now we are on to rereading and highlighting. Rereading and highlighting are ineffective ways to learn material. Several research state this. But we see a graph here, we see a bar chart here as well. What does it say? As the number of readings increase, 0 रीडिंग के बाद 1 पे जाते हैं तो आपके रिस्पॉन्सेज तो इंक्रीज हो रहे हैं, मगर उसके बाद 1 के बाद 2 पे जाएं, 3, 4, इट रिमेन्स द सेम, इट प्लेटूज. और वो प्लेटू करता है तकरीबन 42-3% पे. और 42-3% is not a good percentage of correct responses. You wouldn't want 42% on your test, would you? You won't pass the test that way. So rereading isn't very effective. But why is that? ठीक है, because when you reread, you do feel that the material you're reading after the first time, एक चीज़ आपने पहली दफ़ा पढ़ी है, आपको मुश्किल लगी, दूसरी दफ़ा पढ़ी है, तीसरी दफ़ा पढ़ी है, चौथी दफ़ा पढ़ी है, आपको लगता है बहुत आसान हो गई है और आपके लिए तो आपको लगता है आपको समझ आ रही है, मगर फिर भी रीरीडिंग क्यों इफेक्टिव नहीं है? वो इसलिए इफेक्टिव नहीं है कि रीरीडिंग आपके बार बार पढ़ने की वजह से ना आपकी फेमिलियरिटी इंक्रीज़ हो रही है, मगर आपकी जो टेस्ट डे पे जब आपने बैठना है और आपने जो मेमोरी को रिट्रीव करने की कोशिश करनी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है. ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है. ये
there's a disclaimer that this is not very scientifically accurate, but it does get the point across. So रीरीडिंग जो आपने करनी है ये बुक से आए में आप ये वैसे पाथवे ठीक है न्यूरॉन का ये जाके ब्रेन में स्टोर हो रहा है जो न्यूरॉन की जो मेन चीज़ है जिस तरह कोई भी बॉडी की मसल के कोई भी आप यूज़ करते हैं ना तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसी तरह न्यूरॉन जो नर्व फाइबर्स हैं ये जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना न्यूरॉन तो उतना ज़्यादा वो कंसोलिडेट होता है कंसोलिडेट होने का मतलब कि उसके अंदर से फिर जो फायरिंग की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और उसके अंदर लॉसेस भी कम होते हैं और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें और वो स्ट्रॉगर है ईजियर टू फायर हो जाता है वो पाथवे ठीक है उसको कंसोलिडेशन कहते हैं तो जब आपने री रीडिंग की तो ये आपने ये जो है ना पाथवे जो इनपुट वाला पाथवे है आपने इसको बार बार फायर किया इट बिकम्स कंसोलिडेटेड जब चौथी पांचवी दफ़ा री रीड करें तो इट फायर्स वेरी क्विकली एंड द मेमोरी गोज इनटू द ब्रेन एंड इट स्टोर्स ठीक है बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टेस्ट डे व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टेस्ट डे आपने री रीड तो नहीं करना यू हैव टू रिट्रीव द मेमोरी फिर दूसरा पाथवे है ना हमारा ग्रीन वाला पाथवे दिस हैज़ टू फायर एंड दिस इज़ फायरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन योर लाइफ ठीक है ऑन टेस्ट डे और ये पहली दफ़ा जो भी पाथवे फायर करेगा इट्स नॉट कंसोलिडेटेड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ तो ये बहुत वीक होगा यहाँ से जहाँ से स्टोर हुई वहाँ से रिट्रीव होने तक ये वीक से कनेक्शन बना पहला ठीक है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव हुई और आपको टेस्ट डे के दिन 50% ऑफ द स्टफ यू रेड आपको याद आया ठीक है तो हमने इसको हल किस तरह करना है हमने इसको हल इस तरह करना है कि हमने टेस्ट से पहले वी हैव टू फायर दिस पाथवे एज वेल सेवरल टाइम्स ठीक है आपने इनपुट करने के बाद डाटा आपने ये वाला पाथवे भी बहुत दफ़ा फायर करना है कि इसका कनेक्शन जो रिट्रीवल बिकम्स ईजियर फॉर यू सो ऑन टेस्ट डे इट्स वेरी ईजी टू रिट्रीव सो यू हैव टू fire this pathway as well before test day so that would be the ideal situation so we'll talk about how to implement this ahead अच्छा what's the solution हमने पीछे देख लिया ineffective study techniques कौन सी हैं अब इसका solution क्या है इसका हल किस तरह करना है इसका solution ये different techniques है space repetition active recall elaboration interleaving and dual coding we'll be talking about all of these ahead अच्छा the first study technique active recall what is active recall active recall is the green pathway जब हमने green pathway देखा ना पिछले retrieval वाला जो आपको मैंने कहा कि आपने टेस्ट डे से पहले फायर करना है उसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं ठीक है एक्टिव रिकॉल अब आपने कैसे करना है इसके बहुत सारे तरीके हैं एक तो आपको एक आप बुक से एक चैप्टर पढ़ें बुक बंद करके साइड पे रखते हैं एक खाली पेज लेके उस पर स्केच करें उस पर जो चीज़ आपको याद आ रही है याद करने की कोशिश करके आप लिखें ठीक है उसके बाद आप टेस्ट करें उसके ठीक है MCQs करें उसके अलावा आप क्वेश्चंस खुद बना लें एक आपने चैप्टर पढ़ा उसके खुद क्वेश्चंस बना लें और उसको साइड पर रख लें जब आपने रिव्यू करना चैप्टर तो आप सिर्फ क्वेश्चंस देखें ठीक है फिर उसके बाद क्वेश्चन में से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन तो उसको जाके बुक से खोल के देख लें और एक्टिव रिकॉल के जो कॉमन लूप होल्स हैं कि लोग सिर्फ बार बार जो रटते वाली चीज़ें सिर्फ उनको एक्टिव रिकॉल करते हैं अपने रिकॉल में कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करना है सिर्फ वर्ड्स और डेफिनेशन को रिकॉल नहीं करना और एक्टिव रिकॉल में शुरू में आपको होगा आपको बड़ा मुश्किल लगेगा आप कहेंगे कि बहुत मुश्किल है मैंने छोड़ देना है एक दफ़ा एक्टिव रिकॉल को छोड़ देना है क्योंकि अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो उसका मतलब बेस्ट वर्किंग और रिसर्च ऑल्सो सेज दैट कि learning takes effort so when it's taking effort it means you're learning तो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जाएगा एक्टिव रिकॉल प्रोसेस मगर you should try to do it or because research says so यहाँ लिखा हुआ 84% students perform better when practicing retrieval so it's all evidence backed फिर अच्छा so we'll try to go through this excerpt this is an excerpt from Respiratory Physiology from Linda Costanzo सो हम ये पढ़ते हैं पूरा एक दफ़ा फिर इससे जो है ना ये हमारी एग्जाम्पल है तो हम इसको फिर हम आगे अपनी डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो सरफेस टेंशन ऑफ alveoli the small size of the alveoli presents a special problem in keeping them open this problem can be explained as follows alveoli are lined with a thin film of fluid the attractive forces between adjacent molecules of the liquid are stronger than the attractive forces between molecules of liquid and molecules of gas in the alveoli, which create surface tension. As the molecules of liquid are drawn together by the attractive forces, the surface area becomes as small as possible, forming a sphere, like soap bubbles blown at the end of a tube. The surface tension generates a pressure that tends to collapse the sphere. The pressure generated by such a sphere is given by the law of Laplace, which is equal to pressure is equal to 2 times the tension, surface tension divided by the radius. The law of Laplace states that the pressure tending to collapse an alveolus is directly proportional to the surface tension generated by the molecules of liquid lining the alveolus and inversely proportional to the alveolar radius. Because of the inverse relationship with the radius, a large alveolus, one with large radius,
will have a low collapsing pressure and therefore will require only minimal pressure to keep it open. On the other hand, a smaller alveolus will have a high collapsing pressure and require more pressure to keep it open. Thus, small alveoli are not ideal because of the tendency to collapse. Yet, from the standpoint of gas exchange, alveoli need to be as small as possible to increase the total surface area relative to the volume. The fundamental conflict is solved by surfactant. If you want to pause the video right now to read this over yourself, you should, because we're going to try to put this example in our own try to use this example to tell you about study techniques. So okay, ठीक है. सो एक्टिव रिकॉल के बारे में हम जाते हैं. हमने पीछे पढ़ लिया एक्टिव रिकॉल क्या होता है, तो हम जो अभी एग्जांपल पढ़ी है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की, उसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं. आपने एक दफ़ा वो पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको समझ आ गया. वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, but next time you're reviewing it, so you're not going to reread, you're going to make questions the first time. जिस तरह क्वेश्चन 3 बने हुए हैं, ठीक है, and you're the next time you go for that, you review the questions, ठीक है. आप just our first question, how surface tension in alveoli generated? You try to remember it. You say, acha, the water molecule lining the alveoli generate the surface tension. What is the Laplace law? Laplace law is equal to P is equal to 2T over R. How does the radius of an alveoli affect the surface tension? ये भी आप सोचने की कोशिश करें अगर आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर आप जाके अपने सोर्स मटेरियल से देख लें. How does the surface tension affect the alveoli? Inverse relationship है, that the larger the alveolus, the lesser the surface tension, the smaller the alveolus, the more the surface tension. इस तरह जो भी चीज़ आप याद करेंगे ना एक्टिव रिकॉल से, ये बहुत इफेक्टिवली आपको याद होगी और आपको जल्दी भूलेगी भी नहीं. तो आपने ये एक्टिव रिकॉल को जो है ना इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है. अच्छा, ये नेक्स्ट स्टडी टेक्निक है हमारे पास, स्पेस रेपिटेशन. अच्छा, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं या याद करते हैं तो उसका एक डीके होता है, वो आपको ऐसे ऐसे भूलती है, ठीक है, और उसको आप फिर रिवाइज़ करते हैं. अब हमने रिवाइज़ कब कब करना है, हमने रिवाइज़ एक दिन की या 2 दिन अगले दिन कर लिया, फिर तीसरे दिन कर लिया, इससे तो इफेक्टिव नहीं होगा. हमने रिवाइज़ उस वक्त करना है जब वो इतनी भूल जाए, फिर रिवाइज़ करने का आपको फ़ायदा हो. तो रिसर्चर्स ने एक कर्व बनाया, फॉरगेटिंग कर्व, इसको एबनहाउस कर्व भी कहते हैं. तो इसमें आपने रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन की, फिर 1 डे के बाद आपने सेकंड रिवीजन की, फिर 3 डेज़ के बाद आपने दोबारा की, फिर इसका 6 डेज़ का दोबारा की. आप ये देख रहे हैं स्टीपनेस है इसकी कम हो रही है, यहाँ ज़्यादा स्टीप है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ना आपका बिल्कुल स्टीपनेस कम हो जाएगी, तो आपकी जो फॉरगेटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, तो आपको रिटेंशन आपकी 100% के करीब जाएगी. तो आपने ये फॉरगेटिंग कर्व को जहन में रखते हुए ना आपने जो है ना अपने रिव्यूज़ करने हैं, ठीक है. फॉरगेटिंग कर्व का जो है वो क्या है, डे 1, डे 3, डे 7, डे 30 और डे 90 पे अपने रिकॉल्स करेंगे तो उसको वो फॉरगेटिंग कर्व आपका ईज हो जाएगा. तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन. अच्छा, I've told you what it is, like, or second part, 5 hours or 2 weeks better than 5 hours in one sitting. How to implement it, यही कि आपने स्पेस रेपिटेशन को इम्प्लीमेंट करना है विद एक्टिव रिकॉल. जो आपने एक्टिव रिकॉल करनी है, रीड तो आपने करना नहीं, आपने जो सिंथेसिस क्वेश्चंस बनाए हैं किसी जिस रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के हमने बनाए हैं, उसको आपने स्पेस रेपिटेशन के साथ इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है. इसकी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? कॉमन मिस्टेक्स हैं कि आप इकट्ठा करके एंड पे करें और सही तरह स्पेस ना करें, ठीक है. जो एक्टिव रिकॉल है और स्पेस रेपिटेशन, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो आंकी, वो काफ़ी इफेक्टिव है, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, या उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं. अच्छा, जो हमारी अपनी वो थी एग्जाम्पल, ये सिंथेसिस क्वेश्चंस वाली रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वाली जो 3 क्वेश्चन थे, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसमें उसको हम उसके अंदर स्पेस रेपिटेशन कैसे करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि डे 1 पे वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक्टिवली रिकॉल करने की, फिर डे 3 पे करेंगे, फिर डे 7 पे करेंगे, फिर डे 30 पे करेंगे, फिर डे 90 पे करेंगे, ठीक है. तो ये हमारा उसकी इनकॉर्पोरेशन होगी. ये हम डे 1, डे 3, डे 7, डे 90, ये हम कोई एक ये इस तरह के एक्सेल शीट बना के भी याद कर सकते हैं, मगर इससे बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए. तो आप आंकी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो यूज़ करेंगे, सो उससे जो आपका ये सब कुछ खुद ही ऑटोमेट हो जाएगा. वो एक क्वेश्चन आपको डे 1 पे देगा, ठीक है, तीनों क्वेश्चन डे 1 पे देगा, अगर हम तीनों सही आंसर कर दिए फिर वो 3 दिन बाद दोबारा दे देगा, फिर उसके बाद वो फिर डे 7 पे दे देगा, खुद ही आपको देता रहेगा, और उसके अंदर वो खुद स्टैगर्ड अप्रोच होगी. तो आंकी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो लोग, जिनको लगता है कि सही है तो वो यूज़ करें.
वो काफ़ी इफेक्टिव है और उसमें डेक्स होते हैं, प्री मेड डेक्स भी होते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं. अच्छा, the next study technique we're talking about is elaboration. There is a quote attributed to Albert Einstein: if you can't explain it simply, you don't understand well enough. So elaboration is how and why. कोई भी चीज़ आप उसका पूछें, how and why question पूछें, you try to cross link different ideas together. You use the Feynman technique. Feynman technique is कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है, उसके बाद आप उसको किसी और को समझाने की कोशिश करें in the easiest way possible. या you try to explain it to yourself. फिर then you identify the gaps in your knowledge and your concept, and then you go over the source material again, and then you try to explain it to someone else. फिर इसके बाद इलेबोरेशन के अंदर एक और है कि आप ग्रुप्स में स्टडी करें. अगर ग्रुप्स में स्टडी करना है तो अप टू 3 पीपल के बाद फिर ग्रुप स्टडी की ना आपकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा शोर और ये वो इनफेक्टिव हो जाता है. तो 3 लोग या 3 से कम लोग, 2 लोग या 3 लोग ग्रुप स्टडी करें तो दैट इज़ इफेक्टिव एज वेल एज अ पार्ट ऑफ इलेबोरेशन. तो इलेबोरेशन को जो है ना हम थोड़ा सा वो करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपनी एग्जांपल के साथ जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की थी. तो वही कि why and how does the surface tension increase with decreasing radius, try to explain it to a child. या जो मेन चीज़ है ना इलेबोरेशन की, आपने कोई जिसको बेसिक नॉलेज है उसको आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है. तो हम देख लेते हैं कि जो रेडियस है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जो how does the surface tension increase with decreasing radius. So this is a larger alveolus and this is a smaller alveolus, and we know the surface tension is generated due to water molecules. ठीक है, water molecules. वो किस तरह, क्योंकि water molecules have forces in between them. ठीक है, we have the covalent forces and the ionic forces between the water molecules that, ठीक है, जिस तरह मैग्नेट की फोर्सेस होती हैं और डिफरेंट फोर्सेस हैं that bring the water molecules closer together. ठीक है. So in a larger alveolus the water molecules are farther apart, so the forces are weaker. Just the same way, just imagine a magnet. अगर 2 magnets दूर हैं तो they have a weaker attraction, and if they're closer together they have a stronger attraction. So that same way, in a larger alveolus there is lesser surface tension because the water molecules are spread over a larger part and they have lesser intermolecular forces, while in the smaller alveolus the water molecules are closer together, so they have a stronger intermolecular forces. So a smaller alveolus with decreasing radius will have increased surface tension. See, this is a way of elaborating the concept to try to get it in. Okay, to the next study technique, it's interleaving. इंटरलीविंग का मतलब है कोई भी एक टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपने स्विच करना है, आपने सेम टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना. ठीक, सेम टॉपिक ही ना पढ़े जाएं, जिसको हम ब्लॉक्ड प्रैक्टिस, मैच्ड प्रैक्टिस कह रहे हैं, उससे वो इफेक्टिव नहीं है. ये भी यहाँ वो लिखा हुआ है, इंटरलीविंग जो है ना इम्प्रूव्स टेस्ट परफॉर्मेंस अलॉट. ये आपको राइट साइड पे हिस्टोग्राम में नज़र आ रहा है नीचे. तो इंटरलीविंग है क्या? इंटरलीविंग वही है, इंटरलीविंग आपने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल है. फिर उसके बाद आपने 40 मिनट के बाद एनाटॉमी में अपर लिम्ब पढ़ लिया, फिर 40 मिनट के बाद बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड्स पढ़ लिए. ठीक है, जो इसकी मेन मिस्टेक है वो पीपल स्विच टू क्विकली. लाइक आपने 10 मिनट रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ के फिर स्विच करके आपने 10 मिनट एनाटॉमी पढ़ी, फिर 10 मिनट बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल. और इंटरलीविंग का बेनिफिट क्या, इट प्रिवेंट्स बर्न आउट. ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो एविडेंस बेस्ड कि इट इम्प्रूव्स टेस्ट परफॉर्मेंस अलॉट, क्योंकि इसमें आपके जो माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना एक डिफरेंट एरियाज में मेमोरी सॉर्ट हो रही होती है, दैट गेट्स कंसोलिडेटेड. सो ये इंटरलीविंग का एक ये इंटरलीविंग इज़ अनदर बेनिफिट. ठीक है, interleaving is another effective study technique. So we'll put our example in. मैंने पहले भी बता दिया कि respiratory physiology 40 minutes, upper limb anatomy 40 minutes, or minor acid biochemistry 40 minutes. This is how we implement this study technique, interleaving. उसके बाद going to the next study technique is dual coding. Dual coding is के multiple forms of media से आप जो है ना रिव्यू करें. आप एक चीज़ को बुक से पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ें, फिर उसके बाद उसका एक फ्लो चार्ट देख लें, फिर उसके बाद उसका एक टेबल देख लें, फिर उसके बाद उसकी कोई डायग्राम देख लें, उसकी कोई वीडियो देख लें. डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया से आप कोड करें उसको अपने ब्रेन के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा वो हो जाएगा. और
वो आप कोशिश करें कि जो भी फॉर्म है वो एक्टिव है, वो सिर्फ आप पैसिवली देख नहीं रहे, आप उसको सोचने की भी कोशिश करें, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो डुअल कोडिंग में जो हमारी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वाली एग्जांपल थी वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो इस तरह की वही कि हमने वो टेक्स्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उस टेक्स्ट के साथ उसकी ये देख लिया कि लार्जर एल्वियलस के अंदर स्मॉलर टेंशन है, ठीक है, स्मॉलर एरोज इन दैट एंड स्मॉलर एल्वियलस इज ग्रेटर सरफेस ग्रेटर प्रेशर कोलैप्सिंग प्रेशर, ठीक है, और ये यहाँ फार्मूला भी देख लिया। सो ये हमने एक टेक्स्ट से इसको कोड किया और ये दूसरा ड्यूअल जो कोड किया हमने अपनी मेमोरी के अंदर उस कॉन्सेप्ट को इस थ्रू डायग्राम्स, इसकी हम वीडियो भी देख लें, वो भी एक और अच्छा तरीका हो जाएगा। तो इसको ड्यूअल कोडिंग कहते हैं। उसके बाद हमारी एक और स्टडी टेक्निक है वो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं। कॉन्क्रीट एग्जांपल्स हैं कि आप कोई डेली लाइफ के एग्जांपल यूज़ करके कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करें, मगर इसका एक लूप होल ये है कि आप कोई इनएक्यूरेट एग्जांपल ना करें, कोट, क्योंकि इनएक्यूरेट एग्जांपल अगर आप करेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ख़राब होगा। तो एग्जांपल आप किसी भी चीज़ की सोचने से पहले सोचने के बाद आप अपने प्रोफेसर से उनसे सुपरवाइजर से उससे उनको जो है ना एक दफ़ा उनसे वैलिडेट करवा लें कि मैं सही सोच रहा हूँ, एंड इफ़ दे से सो तो फिर आप उसको खुद भी यूज़ करें और एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स एज वेल थ्रू दैट एग्जांपल। सो हमारी वही रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की वो एग्जांपल जो सरफेस टेंशन वाली थी, कोलैप्सिंग प्रेशर वाली थी, हम उसके अंदर कॉन्क्रीट एग्जांपल उसका एक ये बलून है, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग बलून, जब बलून छोटा होता है आप उसको फैलाना शुरू करते हैं, व्हेन इट्स स्मॉलर इट्स हार्डर टू ब्लो इनटू, ठीक है, बिकॉज the smaller the balloon, the greater the surface tension and the greater the collapsing pressure, ठीक है। फिर उसके बाद when the balloon gets larger in size it gets easier to blow into। तो ये एक एग्जांपल हमारी, ये हमारे कॉन्सेप्ट याद करने के लिए, समझने के लिए हमारे लिए अच्छी है कि smaller the balloon harder to blow into, larger the balloon easier to blow into। when you start inflating a balloon, when it's small it's harder, when it gets bigger it's easier to blow into। So this is a good way of explaining the concept that smaller the radius, smaller the alveolus, greater the surface tension, and greater the alveolus, lesser the surface tension। Okay, to the next example, ये problem based learning है। This is very important कि हमने जो भी चीज़ मेडिसिन में सीख रहे हैं दैट इज़ मोस्टली, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि हमने आगे जाके उसको जो है ना अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमने उसको यूज़ करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो एप्लीकेशन उस नॉलेज की होनी चाहिए rather than just learning the knowledge and you don't know what it's applied for। So problem based learning is really important for medical education। अगर आपको problem based learning modules आपके किसी भी टॉपिक के जो पढ़ रहे हैं वो मिल जाएं तो you go through them on the internet, that's going to really help you अभी भी and later as well, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की एग्जांपल कोई रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की इतनी अच्छी नहीं बन सकती थी, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग नीड्स सेवरल ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, मेनली दे हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट। सो तो उसके लिए जो है ना, मगर मैंने कोशिश की है। This trial 7 month old infant shows signs of tachypnea, expiratory grunting and nasal flaring after birth। ये है acute respiratory distress syndrome की जो चिल्ड्रन में होता है उसकी एक एग्जांपल है। तो ये क्यों होता है, मेनली तो इसलिए होता है कि सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, मगर ये एक और भी रीज़न है कि children have smaller alveoli, so there is more surface tension and more collapsing pressure। So and this is a premature infant, 7 month old, so it has smaller alveoli as compared to a mature full term baby, so it has more collapsing pressure, so it has more chances of acute respiratory distress syndrome। दैट्स अ स्मॉलर फैक्टर, मेनली तो सर्फैक्टेंट बैलेंस कर देता है सब कुछ को, मगर दिस इज़ अ स्मॉल टाई इन, नॉट वेरी साइंटिफिकली एक्यूरेट, मगर यू गेट द पॉइंट कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग के बारे में, ये क्योंकि काफ़ी फेवरेट हमारा जो है स्टडी टेक्निक, और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, तो इसके इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना फिर हमने गुंजाइश निकालने की कोशिश की है। कोई रिसर्च कहती है कि इवन दो इट्स लो यूटिलिटी, अगर आप हाईलाइट इफेक्टिवली करें ना तो फिर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्प करती है। व्हाट इज़ इफेक्टिव हाईलाइटिंग? आप पेन से या हाईलाइटर से हाईलाइट करने के बजाय यू अंडरलाइन विद अ पेंसिल, ठीक है, क्योंकि पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे तो आपका पेज फ्लूइड है। आप व्हेन यू इफ़ यू हैव रेड इट वंस एंड आपको बाद में व्हेन यू रीडिंग द फर्स्ट टाइम आपको लगता है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते जाते हैं या हाईलाइट करते जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं था, या ये चीज़ मुझे मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, ये मुझे याद हो गई, ये नहीं हुई। सो यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ द पेज।
अगर आपने पेंसिल से किया हुआ, अगर आपने हाईलाइटर से किया हुआ तो चेंज नहीं हो सकता। तो एक ये है थोड़ा सा। फिर इसका टेक होम मैसेज यही है इस पूरी प्रेजेंटेशन का कि अवॉइड हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग एज योर पैसिव टेक्निक्स, go for active learning through active recall, through spaced repetition, through elaboration, through concrete examples, through problem based learning, through interleaving. और ये सब कुछ शुरू में मुश्किल लगेगा, ठीक है, मगर इट विल गेट ईजियर। सो यू हैव टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। आप थोड़े टाइम में यू गेट more work done in medical school, and you get time to do other stuff as well, participate in extracurricular as well, not just studying all the time. So that's the take home message. And resources to look out for, and some resources I also that helped me as well in making this presentation. Ali Abdal is a YouTuber, a doctor in Cambridge. You can watch him, and he tells about study techniques as well. Sometimes they're learning scientists. There's a website that also tells about study techniques. Med School Insiders is also another YouTube channel that also tells about study techniques. And this is references. These are the references for my presentation, and thank you very much for listening, and do tell about how you felt about the presentation in the comments. Thank you.